Good morning everyone. So students, this is cash flow statement. We are continuing with chapter number 5, last chapter of this book and last chapter of your syllabus. And yesterday we have discussed about the format of cash flow statement, where we have talked about all the activities separately and how to wind up the question. So we have started doing the illustrations, and I have taken illustration 14 we have discussed. Okay, so today I am taking the next one, 2 or 3 more illustrations I will be taking, so you will know better how to deal with these kind of questions. So I am taking illustration number 15, especially those who are at home. These questions are for them. Following is the extract from the balance sheet of Beta Limited. Nice name. So 2019 and 20, right? Comparative figures are given, and these are the extracts of balance sheet. Equity share capital 5 and 5 lakh, 10% redeemable preference shares 5 lakh each. Surplus balance in statement is given, dividend payable, so and so. So how to start the question? From where to start? What we have to pick up from the balance sheet? कौन सा आइटम हमें पिक करना है? सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L. ओके, सो वी टेक द डिफरेंसेस. अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली. 2019 में आपको दिया है 2,50,000 एंड 2020 में दिया है 4,50,000. व्हाट डज दिस मीन स्टूडेंट्स? यू शुड बी वेरी क्लियर, and those who are in the classroom, please be attentive how this works. See, it is a kind of deposit आप प्रॉफिट में से बचा के रखते हैं. तो 2019 I'm giving it's a name like गुल्लक. आपने आपके गुल्लक में 2,50,000 रुपीज आर अवेलेबल. ठीक है, 2019 में आपके गुल्लक में 2,50,000 थे, एंड ड्यूरिंग दिस ईयर यू अर्न द प्रॉफिट एंड यू हैव डिपॉजिटेड हाउ मच मोर? कितने रुपए और जमा करा दिए हैं? सो योर बैलेंस हैज कम टू 4,50,000. 2 लाख और जमा करा दिए. सो दैट इज द रीजन वी टेक द डिफरेंस. ठीक है, हम ये लास्ट वाला नहीं लेते हैं, हम इसका डिफरेंस लेते हैं. ठीक है, क्योंकि हमें फ्लो जानना है कि साल में कितना इंक्रीज हुआ है, राइट? तो हाउ मच दैट हैज इंक्रीज, एंड फॉर दिस वी टेक क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस. सो व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस? It's 4,50,000 is the closing balance, and opening balance is 2,50,000. All right. So your difference is 2 lakh. So we start the question with this 2 lakh. Okay. Now next it is telling equity share capital and redeemable preference share capital. It has got nothing to do with this question, because the question is simply asking. Always focus on the question what it is asking. In the last line, determine net प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है, एट दिस स्टेज यू नो आई हैव टोल्ड यू. सो नेक्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दिया है प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 20. वो 1,50,000 एंड 1 lakh ईच. सो वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट ऑलरेडी. Dividend you declare at the end of the year, but that dividend is not paid in that particular year of which it belongs, right? Of the year which it belongs. We can't pay in that particular year. We declare only and we pay in the next year, right? So previous year 2019 का जो payable था, जो declare हुआ था 1,50,000, that you must have paid during this year. Okay, so that will be added back. So we will be adding 1,50,000 in this, right? And this is what? Dividend payable for 2019. You should write the complete narration of this. Okay. Now next it is telling an interim dividend of rupees 50,000 on equity shares was paid on 31st December 2019. इंट्रीम का मतलब होता है इन बिटवीन, साल के बीच में आपने डिविडेंड पे किया है. ठीक है, तो आपने 50,000 का इंट्रीम डिविडेंड पे किया है, इससे प्रॉफिट कम हो गया. वी विल ऐड बैक इंट्रीम डिविडेंड 50,000 आपने ये भी ऐड कर दिया, राइट? नाउ व्हाट स्पेशल इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? डिविडेंड पेएबल दे रखा है 20,000 मार्च 2020 में. हार्डली मैटर, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज. डिविडेंड पेएबल यानी कि पे करना है, पे नहीं किया है, वी नीड नोट. ऑल राइट. नाउ व्हाट स्पेशल इज द
students, you might be knowing that we pay dividend to the preference shareholders before equity shareholders, and here we have paid dividend of the equity on the equity shares, and interim dividend also we have paid. That means we must have paid the dividend on preference share. Here we have a preference share given in the question, 10% redeemable preference share 5 lakh. 5 लाख पे 10% कितना होता है 50,000, ठीक है। तो ये भी आपने पे किया था, जो कि आपने वापस ऐड बैक कर दिया, ठीक है। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, जस्ट डू द टोटल, इट्स 4,50,000, ठीक है। तो दिस 4,50,000 इज व्हाट? This is your net profit before tax and extraordinary item. Is that clear? That is what we wanted to calculate. Well, next I'm taking illustration number 16. What special is there in this question? Be attentive students, those who are at home. From the following information for the year ended 31st March 2020, calculate net profit before tax and extraordinary item. It's telling that surplus balancing statement, that's opening they have given, and it has a negative balance 2 lakh rupees, and surplus balancing statement of P&L closing balance is given 5,40,000. Okay, so this point you have to understand in this. And what is the formula here? Closing balance minus opening balance, this we have learned. Okay, what is the closing balance given? This is 5,40,000. Okay, and opening balance is your नेगेटिव बैलेंस, यानी 2 लाख का लॉस है, ठीक है। ये आपको दिया है, तो वी हैव टू फाइंड आउट हियर व्हाट कम्स, इनका डिफरेंस क्या है, यानी कि आपने इस साल में कितना सरप्लस में डाला है वो अपने को फाइंड आउट करना है। सो जनरली स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज एंड दे कैन राइट एनी फिगर, 3,40,000 भी लिख सकते हैं, ये प्लस हो रहा है ये माइनस हो रहा है, बट दिस वर्क्स लाइक दिस, 4,50,000 minus opening balance. What is the opening balance? ये नेगेटिव 2 lakh. Okay, minus minus plus हो जाएगा, right? So 5,40,000 plus 2 lakh, this comes 7,40,000, right? This is the amount which is like you have deposited in the surplus this year, right? So you can understand it this way also. Suppose you have a bank overdraft of 500 rupees. 500 का आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। और अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ कि आपके अकाउंट में 400 रुपये हैं, याकुल इट्स फॉर यू, यू आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। आपका बैंक ओवरड्राफ्ट 500 रुपये का है और आपके अकाउंट में 400 रुपये हैं, राइट, इस टाइम। तो बताइए आपने बैंक में कितने पैसे जमा कराए, कितने रुपए जमा कराए? एवरीवन, इफ यू हैव अ लिटिल डाउट, सो जस्ट थिंक ओवर दैट। इट्स वेरी इजी, जस्ट थिंक 500 रुपये ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट तो समझते हैं ना, कि आपके अकाउंट में नहीं होने के बाद बैंक ने आपको फैसिलिटी दिया एंड यू कैन ओवरड्रॉन। आपने अकाउंट में ना होते हुए भी उस फैसिलिटी को यूज़ किया है, ठीक है। आपने किसी को चेक दिया था, 500 बैंक वाले की तरफ से हो गया, आपके अकाउंट का बैलेंस निल हो गया, 500 बैंक वालों की तरफ से हो गया और आपका चेक पास हो गया, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट यानी ज़रूरत अकाउंट में ना होते हुए 500 रुपये ज़्यादा निकाल लिए आपने, और आज की डेट में 400 रुपये आपके बैंक अकाउंट में हैं। तो बताइए आपने कितने जमा कराए? 900। इज दैट क्लियर हाउ दिस वर्क्स? कि पहले आपका बैलेंस नॉर्मल आने दो, आई मीन ज़ीरो होने दो, ठीक है। अभी तो ज़ीरो भी नहीं है ना, माइनस में जा रहा है। तो पहले आप 500 बैंक को देंगे तो आपका ओवरड्राफ्ट कवर हो गया, अब आपका बैंक बैलेंस निल हो गया। अब आप 400 रुपये और जमा कराएंगे तो आपके बैंक अकाउंट में 400 डिपॉजिट हुए, दैट मीन्स 900 रुपीज़। इफ़ यू डिपॉजिट 900 रुपीज़ देन योर बैंक बैलेंस विल बी शोइंग 400। So this works in the same way. When you have 7,40,000 rupees in the reserve and surplus, this year you have deposited, then your balance will be shown, closing balance will be 5,40,000, ठीक है। तो हमारा पर्पस क्या है? फाइंड आउट करना कि आपने इस साल में कितना डिपॉजिट कराया है, ठीक है, क्लियर। So this is, we can see here, this is 7,40,000 and rest of the things works like that as we have learned. Proposed dividend for the year 2020 and 19, तो हम कौन से वाला लेंगे? 19 वाला लेंगे, 2,10,000, ओके। देन वी हैव ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, किसी भी रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं वापस ऐड बैक कर देंगे क्योंकि मुझे रिजर्व से पहले का चाहिए। एंड प्रोविजंस फॉर टैक्स, आपने ये प्रोविजंस टैक्स के लिए बनाए थे 2,30,000, तो ये भी आप वापस से ऐड कर देंगे।
So this way we have calculated net profit before tax and extraordinary item 13,30,000. All right, students. So it's very interesting, easy and simple if you pay attention and your concepts are clear. So take care and complete all these questions. So now I'll be taking 20th. You have done, students? Yes, sir. Okay. 21 notes. So I'll take illustration number 21. This is one step ahead. Next step we are taking. Do you remember the format? Everyone. सबसे पहले क्या चीज फाइंड आउट करते हैं हम? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. हो गया, हमने सीख लिया कैसे कैलकुलेट करना है. उसके बाद हम क्या प्लस करते हैं? नॉन कैश एंड, लुक हियर, क्या लेते हैं? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, वो आप प्लस कर देते हैं. ऐसे ही अपनी अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो उसको क्या करते हैं? माइनस. तो ये वो वाला स्टेप हम कर रहे हैं. ठीक है. नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 21. यू कैन सी स्टूडेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस एंड दैट इज व्हाट वी कैलकुलेट. इस स्टेज में जो कैलकुलेट करते हैं वो क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. शाहीन, पलक, आर यू गेटिंग? फिर उसके बाद डीए वाली कंडीशन एप्लीकेबल होती है. ठीक है. So this is what we have, net profit before tax and extraordinary item. ये आपको कैलकुलेट करके दे दिया है जो अभी तक हमने सीखा था. So this is net profit before tax and extraordinary items. It's given 2,23,500. All right, this amount we have given in the question. Next we have depreciation. Tell me students, depreciation कहाँ दिखाया होगा हमने? P&L में दिखाया होगा. नेट प्रॉफिट में से माइनस हो चुका है. वैसे भी ये क्या है? नॉन कैश आइटम है. नॉन कैश आइटम है, कैश का फ्लो हुआ ही नहीं है, तो वापस क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. ठीक है. This is depreciation. How much? 42,000. Then you have interest on borrowings. Interest on borrowings कौन सा एक्सपेंसेस है? ये आपने ले रखा है नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, P&L में दिखाया है, बट कौन सी एक्टिविटी का है? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स. कौन सी एक्टिविटी है पलक? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कौन सी एक्टिविटी है? हाँ, अपना अपना बोलो सोच के भाई. कैसे? वेरी गुड. आपने बोरो किया है. ठीक है. आप मनी बोरो कर रहे हैं तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है. राइट. तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी हम नहीं लेते हैं यहाँ पे. सो यू विल ऐड बैक इंटरेस्ट ऑन बोरो. हाउ मच? 8,400. ऑलराइट. नेक्स्ट वी हैव लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी. हिमांशु, यू टेल मी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कौन सी एक्टिविटी है? या ऊपर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी किस हेड में, कौन सी एक्टिविटी में आता है? गुड. इट्स ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. ठीक है. तो आपने P&L में दिखा रखा है, इसका इफेक्ट हमें खत्म करना है. वापस हम ऐड कर देंगे. इट इज हाउ मच इज गिवन? इट्स 9,000. I have skipped one item, that is goodwill amortized. Yes, goodwill amortized क्या है? जैसे depreciation on the fixed assets है, ऐसे ही amortized is on the intangible assets. तो goodwill आपने write off की है and this is 9,000. Okay, goodwill amortized 9,300. amortize means write off करना, गुडविल की वैल्यू को कम करना. जब गुडविल की वैल्यू कम होती है तो आप कहाँ दिखा रहे हैं? नेट प्रॉफिट कम हो रहा है, उसकी वजह से कोई भी चीज़ आप राइट ऑफ करते हैं तो P&L में दिखाते हैं. अटेंडेंस शीट. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? गुडविल राइट ऑफ कहाँ करते हैं? एक्सक्यूज मी, डेप्रिसिएशन कहाँ दिखाते हैं?
गुडविल को राइट ऑफ करना हो, किसी चीज़ की वैल्यू को कम करना हो तो कहाँ दिखाएंगे? P&L के डेबिट, ठीक है। तो इस वजह से एंड देयर इज नो फ्लो ऑफ द कैश, no flow of the cash, so you have added back. Next one, just quiet please. Premium on redemption of debenture, interest on dividend received on investments, and profit on sale of investment. So you have premium on redemption of debenture. This item is not related. And interest and dividend received on investments. Yes, interest and dividend रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इसका क्या करेंगे? सोचो, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव कौन सी एक्टिविटी है? बहुत क्लियर दे रखा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑन इन्वेस्टमेंट्स बोला है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है। ये आपका माइनस में आ जाएगा क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है? आपका प्रॉफिट बढ़ गया है, माइनस। तो पहले और देख लेते हैं। एंड देन वी हैव प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ थिंग कि इन्वेस्टमेंट पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, ये भी आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसको भी आप माइनस करेंगे, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर P&L में नहीं आता है। ये क्या चीज़ है? याद करो, आप लोगों ने चैप्टर नहीं किया है एक्चुअली, बट इशू वाला किया है ना आपने। तो प्रीमियम ऑन, आगे क्या दे रखा है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन के टाइम आप प्रीमियम पे कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द P&L। P&L में नहीं लेते हैं इस आइटम को, ठीक है। इट्स योर लाइबिलिटी, यू विल बी पेइंग। अंडरस्टूड दैट? ओके, समझ आ गया? P&L से कंसर्न नहीं है ये, राइट। तो यू कैन सी हियर वी हैव टेकन द डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, गुडविल अमोर्टाइज्ड, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। टोटल करेंगे इसका, ऑल दीज थिंग्स विल बी टोटल एंड दीज कम्स 68,700 एंड the gross total of these two items is 2,92,200, ठीक है। Now what to do? जो आइटम हमने अभी देखे थे, जो हमें माइनस करने हैं, कौन से हैं ये? कौन से हैं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इस इनकम की वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ चुका था, जिसका इफेक्ट मुझे हटाना है। इफेक्ट हटाने के लिए आप क्या करेंगे? इस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, इट्स interest and dividend on investments, and this is profit on sale of investments. This is your 13,800 and 6,000. Both the items you will be reducing, and you can see here its total is 19,800 and your total finally 2,72,400. Okay, this is what operating profit before working capital changes. Have you understood? This is the second stage which we have done. ध्यान से समझ लो। इसीलिए इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है, प्रोवाइडेड यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स एंड योर यू नो द आइटम्स आर क्लियर कि कौन सा आइटम क्या है, उसका क्या मतलब है, कहाँ जाता है, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपको ढंग से समझ आ रही हैं कि कौन सी एक्टिविटी का है, क्या इसका मतलब है, तो कुछ नहीं है, फिर हमें प्लस और माइनस ही करना है। ओके, तो थोड़ा सा इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिए थे, डू यू रिमेंबर? 13 illustration I have given to go through and do it, but आप में से किसी ने भी कोई प्रॉब्लम नहीं पूछी। It means there is no doubt, but I know you didn't do it thoroughly. ये प्रॉब्लम उसी की वजह से, अगर वो अच्छे से आप कर लेते ना तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। चलिए, those who are at home, you should take care. In the first video I've just told you, first or second I've just told you to go through those things, तो उसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। Now next is your effect of changes like in current assets and current liabilities we have discussed. Fine. So let me take illustration of this also. यहाँ पे हम क्या चीज लेंगे साथ में? प्लस डीए। प्लस डीए ध्यान रहेगा आपको? यस बेटा, प्लस डीए ध्यान में रहेगा। चलिए, दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 22. कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स. Here we have the surplus balance in statement given. I'm taking in short, we are short of time. March 31st 2019 and 20 के balances हैं। 19 में आपके पास 2 लाख है
एंड 20 में कितना है 3 लाख है, तो दिस इज 3 लाख माइनस 2 लाख, दिस कम्स योर 1 लाख. ठीक है, ओके. एंड नाउ दिस इज व्हाट दिस वी हैव कैलकुलेटेड. क्या चीज है ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड extraordinary items. You have to do the question in absolute format, proper format में करना है आपको. And if it is possible, ये वाली जो चीज़ है ये आप वर्किंग में करके दिखाएं नीचे. 2 years back there was a question paper, I mean board exams were there, and जिन स्टूडेंट्स ने वर्किंग नहीं बनाया था उनके मार्क्स डिडक्ट हो गए थे, तो आप वर्किंग में बना के दिखाएं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन, ये टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम यहाँ पे ये इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, आपको कैलकुलेट करके दे दिया है. नेक्स्ट स्टेप क्या है जो हमने अभी किया था, प्लस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स एंड प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स. सो लेट्स हैव अ लुक. डू वी हैव समथिंग लाइक दिस? सरप्लस दे रखा है BR एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, गुडविल एंड इन्वेंट्रीज. ओके, नाउ हैव अ लुक. कौन सी चीज आ सकती है? कुछ नजर आ रहा है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. ध्यान दो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है? लास्ट ईयर आपने डेप्रिसिएशन का चैप्टर किया था. इट्स अ सिंपल मेथड इज डेप्रिसिएशन, जो फिक्स असेट्स में से हर साल कम होता है. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लाइक द होल ब्लॉक ऑफ असेट्स एंड उस पर पूरा आपका एक्यूमुलेट होता जाता है, इकट्ठा हो रहा है. सो जस्ट वॉच हियर. 3 लाख, this was in the year 2019 and in the year 2020 we have a balance of 3,20,000. कितना इंक्रीज हो गया? How much this has increased? This has increased by 20,000. उत्पल, पिछले साल 3 लाख था, अब कितना हो गया बताओ? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो 20,000 बढ़ गया यानी इस साल डेप्रिसिएशन लगा होगा, और इस डेप्रिसिएशन का क्या करते हैं आप? क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं. ठीक है, कितना है? 20,000. ओके, देन अनदर आइटम इज गिवन गुडविल. गुडविल भी अगर कम हो रही है तो हम मेंशन करेंगे, और ज़्यादा हो रही है तो नहीं करेंगे. ठीक है, ज़्यादा है तो इसका मतलब, अगर गुडविल इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब यू हैव परचेज्ड मोर गुडविल, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा. बट इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं पिछले साल कितनी थी उत्पल गुडविल? पिछले साल, और इस साल कम हो रही है. कम हो रही है यानी अमोर्टाइज्ड, उसको भी हम प्लस करते हैं. ठीक है, कितना आ गया? 40,000. इज दैट ओके? अपने पास कोई और आइटम है? ऐसा कोई आइटम नहीं है जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हो. ओके, सो वी जस्ट ऐड, दिस कम्स 1,60,000. ओके, अब कौन सा स्टेप है? अब माइनस करने वाला इसमें और कुछ भी नहीं दे रखा है, तो ये क्या कैलकुलेट हो गया? This is your operating profit before working capital changes. ठीक है, अब कौन सा स्टेप करना है हमें? प्लस DA. आप समझ लें DA क्या होता है? इनफैक्ट द मीनिंग ऑफ DA इज डियरनेस अलाउंस. सैलरी वाले चैप्टर में इनकम टैक्स में जब आप पढ़ेंगे, जब आपको मिलेगा. ठीक है, तो DA हमेशा बढ़ता है, काटते नहीं है कभी भी, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई भत्ता मिलता है. गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है ना कि 4% DA हैज़ बीन गिवन टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. ओके, सो हियर हाउ वी आर कोरिलेटिंग D से डिक्रीज और A से असेट्स, एंड वी नो दैट कि वर्किंग कैपिटल में आपकी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी ही डील होती है, तो वो अपने आप समझ लेना. ठीक है, तो डिक्रीज इन करंट असेट्स, एंड इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज. तो ये चीजें तो दोनों आपकी प्लस होती हैं. ठीक है, और इसके ऑपोजिट कौन सा होता है? इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज. ठीक, नाउ लेट्स फाइंड आउट. क्या हमें करंट असेट्स दे रखी हैं? BR क्या होता है? करंट असेट्स है. BR का बैलेंस चेक करो, पिछले साल कितना था? 1,40,000, और इस साल कितना हो गया? बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है. इंक्रीज इन करंट असेट्स, इधर देखो किधर आएगा?
इंक्रीज इन करेंट असेट्स, इधर देखो तनु, कहाँ आएगा इंक्रीज इन करेंट असेट्स, माइनस होगा, कितना है 40,000, ये माइनस में है। नेक्स्ट है हमारे पास आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या चीज़ है, करंट लायबिलिटी। तो बैलेंस देखिए इसका 16 से 40 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। डिफरेंस कितना आया 24,000 प्लस का हो गया, ये माइनस का। एंड देन वी हैव प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, इतना तो पता ही होगा, पहले पढ़ रखा है। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, करंट असेट्स होती है, प्रीपेड आपकी असेट्स होती हैं, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हैं। तो प्रीपेड इंश्योरेंस 14 से 12 हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज इन करंट असेट्स। तो डिक्रीज इन करंट असेट्स क्या होगा, प्लस, कितना है अमाउंट 2,000, तो ये 2,000 इसमें प्लस हो जाएगा, तो ये 26,000 आपका प्लस हो गया है। 1,86,000 एंड दिस 40,000 यू विल बी रिड्यूसिंग। कुछ गड़बड़ करती है, इन्वेंट्रीज बची है मैम, यस, लास्ट का नहीं देखा हमने। इन्वेंट्री पहले 140 था, अब 180 हो गया, तो ये इंक्रीज हो रहा है, 40,000 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज इन करंट असेट्स क्या हो जाएगा, माइनस, कितना है 40,000, तो ये 40 एंड 40 80,000 आपका माइनस हो जाएगा, राइट। दिस कम्स योर, कितना आ जाएगा 1,06,000। नो अदर थिंग्स आर गिवन, तो ये क्या चीज़ है आपकी, दिस इज गिवन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बिफोर, अभी इसमें हमें टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अभी और डील करने हैं, बट क्वेश्चन में नहीं दे रखे हैं। दैट मीन्स दिस इज द फाइनल फिगर एंड वी कैन से दैट दिस इज योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इज दैट क्लियर? So I think if you devote a little time in this chapter, this is very easy and you can understand it. All right. So practice all the illustrations related to this concept and back questions also. Okay. Thank you.